Good afternoon, class. Today we are going to discuss about loop. In previous class, already we have discussed about while loop and do while. And today we will discuss about for loop. How we can write the program based on for loop. What is the syntax of for loop? इस सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है. ओके, रितुल, इज दैट क्लियर? Yes, sir. So here we are going to write first of all syntax, then example, and then program. See programming, for loop. C programming for loop. ठीक है क्लास? रितुल, क्लियरिटी के साथ दिख रहा है आपको? रितुल, Yes, sir. okay. So here for loop, write down, bottom, write down. For loop is a result loop. Is a result कीवर्ड, एक तरह का कीवर्ड है. In for loop we check the condition. In for loop we check condition in one line where first define variable initialization like in variable initialization with data type, that is num int example में है num is equal to 1 and terminated. रितुल, क्लियरली दिख रहा है नहीं? रितुल, Yes, sir. थोड़ा लाइट है. एंड मैंने जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ वो कंटेंट आपको दिख रहा है ना रितुल? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ. ओके, ऊपर दिख रहा है. एंड टर्मिनेट
with semicolon and terminate with semicolon. Semicolon का ये assembly. Okay. पर in second, we are first define initialization, where second where second define where second define conditional, where second define conditional expression, where second define conditional expression like conditional expression like num greater than 0, num greater than 0, and terminate by semicolon, and terminate by semicolon. This one, and terminate by semicolon, and in last and here last third and third आप कर सकते हैं, second third, here third define, here third define increment or decrement, that is here third define loop deriving variable, loop driven variable like num plus और अथवा num minus, but here we do not terminate, by semicolon, यानी कि यहाँ पे हमें टर्मिनेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, यानी कि सेमीकोलन से टर्मिनेट करने की जरूरत इंक्रीमेंट में नहीं होगी. सिंटैक्स, राइट डाउन सिंटैक्स, syntax of for loop, syntax of for loop. So here like this, for variable initialization. Ritul, are you seeing properly? Variable initialization and semicolon. Ritul, yes या no? Clearly दिख रहा है आपको? Variable initialization, conditional. ऋतु बोल नहीं रही है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir.
डिस्टेंस सही से दिख रहा है? Yes, sir. वेरी गुड. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन, म्यूट कर लीजिए, बिल्कुल म्यूट कीजिए. कंडीशनल एक्सप्रेशन एंड इन लास्ट लूप derived variable. Loop derived variable. Examples. For example, of for loop. For loop के एग्जाम्पल क्या है? लेट फॉर, आप डेटा टाइप, इन फॉर लूप में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप डेटा टाइप पहले भी डिफाइन कर सकते हैं और इस लाइन में भी आप डिफाइन कर सकते हैं. मैं दोनों तरीके से भी करके यहाँ पे बता देता हूँ. हाउ वी कैन डिफाइन द फॉर लूप. for int num is equal to 0, num less than equal to 0, num plus. Yes या no first, and in second we will write unknown को अगर डिक्लाइन कर देंगे. So here we can say for int num is equal to 0, num less than equal to 0, num plus. Here I have defined the data type with variable, but right now we are going to define the data type another, and variable initialization will look like this. Int num for num is equal to 0, num less than equal to 0, num plus. क्या डिफरेंसेस हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? हम डेटा टाइप फॉर लूप के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं. रिटर्न यस या नो. डेटा टाइप देखिए, क्या वेरिएबल के साथ यूज कर लिए? वेरिएबल के साथ डेटा टाइप रिटर्न यूज कर लिए हैं. और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया? डेटा टाइप अलग डिफाइन किया वेरिएबल के साथ और इनिशियलाइज अलग किया. तो लिखने का यहाँ वे ऑफ राइटिंग. जैसे सचिन अपने वहीं कपड़े को फोल्ड करते हैं तो कट ऐसे कट रख लेते हैं, और गौतम जो है ऐसे कट कर लेते हैं. तो कट है, चाहे खोपा वाला कट रख लीजिए या उल्टा हुआ. बतवा तो बराबर ना होगा, चीजें वही. तो हम रखते हैं छोटा कट, तो उससे क्या होता है? बाल को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. तो यही रख लीजिए इसको. एक बार में ये सब डिफाइन हो गया. मैक्सिमम जब कोडिंग हम लोग करते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है? ए ज्यादा बेटर अप्रोच होता है कि आपका लाइन ऑफ कोड तो बच गया. इसको वेट कीजिए, फैन का आवाज आ रहा है. यहाँ देखिए इंट आ गया, फिर नाम आ गया, तो क्या हुआ? एक साथ दोनों आ गए ना. तो लाइन ऑफ कोड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेकिन अगर हेयर छोटा रहेगा तो मेंटेन करने में आसानी होगा कि नहीं? तो ऑलवेज वी विल सजेस्ट फर्स्ट लूप इज बेटर. हाँ, सेमीकोलन देना है, यही तो मैंने लिखा है ना, टर्मिनेट. लेकिन लास्ट डिराइजन में हम नहीं देंगे. ओनली वी विल टर्मिनेट in variable initialization, only will terminate in conditional expression. Here I have written in for loop we check condition in one line
ऑनलाइन नहीं, यहाँ पे सॉरी वन लाइन होगा, एक टेस्ट हो गया। इन वन लाइन where first define the variable initialization with data type int num is equal to 1 and terminate with semicolon and in step किसमें conditional expression variable initialization में, and second define the conditional expression like num greater than 0 and terminate by semicolon, यहाँ पे करेंगे। बट देखिए यहाँ पर where third define the loop driven variables like num plus plus, but here we do not terminate by semicolon। क्या टर्मिनेट किए लास्ट में? नहीं किए ना, वही क्लियर है। अब हम लोग राइट नाउ वी आर कैपेबल टू राइट द प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए क्या है? सक्षम है, लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट सेट कीजिए। गौतम दुपाल प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे किस चीज पे? दैट मीन्स जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उन चीजों को समझेंगे कि हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम फॉर नेचुरल नंबर, हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम एंड स्टडी। आई हैव गिवन 5 क्वेश्चन, व्हाई यू हैव नॉट राइट द प्रोग्राम फॉर 5 क्वेश्चन, व्हाई यू हैव नॉट रिटन? सचिन श्रीवास्तव, why you have not written the code for 5 programs? Study I have given or not? कल 5 questions while loop dual loop पे दिए थे ना बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया आपने? सॉरी नहीं बना। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? बोलिए, बनाएंगे। पहले एक एग्जांपल से समझा देते हैं फॉर लूप कैसे काम करेगा ना, फिर उनके एग्जांपल से उससे भी करा देंगे। आई थिंक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ओके क्लास, क्वेश्चन है राइट डाउन vacancy to generate natural number, vacancy to generate natural number, vacancy to generate natural number up to कितने तक? 100. So here okay class, math.c, this is the file name with extension dot. Why? So here has include std io.h main opening bracket int, look at बोर्ड पर ध्यान दीजिए, int num, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑफ हियर। प्रिंट रितुल, आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली? दिख रहा है सही से रितुल? Yes, sir. गुड। प्रिंट इंटर
any number. Enter any number. And in scanf, स्कैनएफ क्या होता है? सचिन श्रीवास्तव, क्या होता है स्कैनएफ? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एंड ऑलरेडी आई हैव अबाउट, सभी चीज बता चुके हैं। क्या होता है? स्टैंड अप, खड़ा हुई, याद नहीं है, क्या करते रहते हैं दिन? सब बताइए एक एक तौर, क्या दिन पूछ ही लेंगे। है तो क्या बोलते हैं? इंक्लूड को खड़े रहिए, एसटीडी को, एसआईओ को, डॉट एच को, मेन को खड़े रहिए, इसको इंट को डेटा है, नम को, प्रिंटेड को, प्रिंटेड स्क्रीन को होल्ड करता है, बहुत अच्छे। स्कैनर को खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, तब जो है सब पढ़ता ही नहीं। प्रिंटेड स्क्रीन को होल्ड करता है, समझिए। हाँ, है तो क्या बोलते हैं? इंक्लूड को, एसटीडी को, तब बताए थे कि नहीं बताए थे? एक्सप्लेन किए थे कि नहीं किए थे? तो नहीं पढ़िएगा, दिन भर ऑनलाइन क्लास करने से थोड़े होगा। ज्यादा खाने से कोई मोटा जाएगा? खाइए कम लेकिन सॉलिड खाइए। सिट डाउन, सिट डाउन। अब ज्यादा खा लेने से ताकत थोड़े आता है क्या विकास? अब दिन भर 6 बजे सुबह से लेकर 5 बजे से लेके शाम तक क्लासें ऑनलाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से, तब लापता है। क्लास अटेंड करना बड़ी बात नहीं है, क्लास को अंडरस्टैंड करना बड़ी बात होती है। यहाँ पे वही चीज डेवलप करते हैं। 10 मिनट 10 जगह करने से बस नहीं है, आप चीजों को समझेंगे नहीं तो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, एक लाइन प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। आपको लगता है व्हाइल लूप प्रोग्रामिंग आसान है, वो अभी तो आपको प्रोग्राम दिए कहाँ? एक प्रोग्राम लिखना ही बहुत आपके लिए टफ हो जाएगा, इसलिए इसको आसान मत समझे, दिस इज नॉट इजी। अब समझेंगे आसान है कि भारी, वो तो कंपाइलर डिसाइड करेगा जब आप कोडिंग करने के लिए बैठेंगे। देखिए लुक एट स्कैनएफ % डी एम %, ओके। अब क्या कि लूप चलाते हैं, फॉर नम इजिकल टू नम। मैंने यहाँ पे नम इजिकल टू नम इनिशियलाइज, क्यों? क्योंकि फॉर लूप में यू मस्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो अगर नम इजिकल टू नम दिए तब यूजर जितना से इनिशियलाइज कराना चाहता है उतना से हो सकता है। यूजर 1 से 100 तक क्या है आउटपुट देखना, ऐसा नहीं है क्या? यूजर 50 से 100 तक नहीं देख सकता है क्या? आपसे पूछ के देखेगा? आप प्रोग्रामर हैं, आप ऐसा कोडिंग कीजिए। यूजर थोड़े प्रोग्रामर, यूजर तो यूजर है, उसको तो यूज किसी भी तरीके से कर सकता है। 1 से 100 तक भी करा सकता है, 50 से 100 भी करा सकता है, ट्रिप ना रैंडमली कोई नंबर दो। आप ऐसा कोडिंग कीजिए वो सारी चीज नंबर से तो वर्क करे। तो क्या करेंगे? हियर वी विल डिफाइन इनिशियलाइज द वेरिएबल नम इज इक्वल टू नम एंड देन नम लेस देन इक्वल टू 100। क्लियर है रितुल? एंड देन we must Yes, sir. derive the loop driven। लूप ड्राइवन करेंगे कि नहीं रितुल? नम प्लस प्लस तभी ना नंबर आगे बढ़ेगा, यस या नो? बट इतना कंफर्म जरूर है कि वह नंबर किससे लेस देन होना चाहिए रितुल? 100 से लेस देन होना चाहिए। तो हियर we will write num less than equal to 100 and num plus, and then opening braces printf
If you will write natural number, that will be print entire the number. सबके साथ natural लिख के आ जाएगा. आप चाहते कोई चीज नहीं आवे तो सिर्फ क्या करेंगे, ओनली यू विल परसेंट टी क्या होता है इन लास्ट क्लास स्टडी आई हैव डिस्कस. सचिन जायसवाल, परसेंट टी स्लैश टी क्या होता है कल बताए थे लिख के. हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यू देखने के लिए आप आउटपुट चाहते हैं ऐसे दिखे 1 2 3 4 5 दिस. आप चाहते हैं आउटपुट ऐसे दिखे 1 2 3 4. ये दो फॉर्म हुआ. दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म. व्हाट वी विल स्पीक, दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड दिस इज vertical form. But what do you want? आप क्या चाहते हो ये कौन डिसाइड करेगा, यूजर डिसाइड करेगा. आप अगर यहाँ पर इफ यू डिफाइन द स्लैश टी दैट मीन्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंपाइलर विल अंडरस्टैंड ओके आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा स्टेप सीक्वेंस डिफाइन करना होगा. इफ यू वांट टू सी the output in a horizontal form, you must use which escape section, backward slash T. Clear है? कोई डाउट? So here हाँ बिल्कुल. अब वर्टिकल के लिए यस बताया था मैंने स्लैश. क्लियर है? कंप्लान हुआ. देखिए यहाँ पे हो गया. एंड देन वी विल राइट %d. अब महत्वपूर्ण बात है कि %d क्यों लिखेंगे. इन सी व्हाई हियर व्हाई वी विल राइट %d. सिट डाउन. दिन भर क्लास करना है खाली. क्या होता है %d? सचिन श्रीवास्तव %d. विकास कुमार नींद में है, बताइए %d क्या होगा. इंटीजर आइडेंटिफायर का वैल्यू कराने के लिए. यह कैसे प्रिंट करेगा, हाउ कंपाइलर भी अंडरस्टैंड. ये वैल्यू अगर चाहते हैं इफ यू वांट टू सी आउटपुट लाइक दिस सो यू मस्ट डिफाइन द इंटीजर आइडेंटिफायर लाइक दिस %d. यस या नो. कैन बी राइट और नॉट राइट, कैन बी राइट और विल बी राइट. लिख सकते हैं या लिखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे. तो हियर %d and then we will write num and automatically output will be true like this. इस तरह से प्रिंट. कोई दिक्कत, कोई डाउट. सो हियर आउटपुट देखिए. अब मुझको आउटपुट बताता है किस तरह से आएगा. स्क्रीनशॉट सचिन आपसे लिखेंगे लिखते हुए जैसे हम लिख रहे हैं. So here we will write output enter any number. आपने दिया कितने नंबर, 1 नंबर 1. यानी यू आप चाहते हैं कि आउटपुट कहाँ से डिस्प्ले हो, नेचुरल कहाँ से जनरेट हो, 1 से. आप चाहते हैं कि नहीं 10 से. तो क्या 1 से डिस्प्ले करेगा, 10 11 12 करते हुए. तो मान लीजिए आपने 1 दिया तो दैट विल प्रिंट 1 2 3 4 5 डॉट 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 100. यस या नो. क्लास क्लियर है, किसी को कोई डाउट. रितुल कोई क्वेश्चन, No sir. एनी प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, सही से. अब देखिए तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि कैसे आएंगे. अब क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अब इस प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है. अब एक चीज आप लोग को बता चुके हैं कि कौन सा प्रोग्राम में किस डेटा टाइप के साथ क्या यूज करते हैं. अगर नंबर है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, इंटीजर बता चुके हैं ना. अगर फ्रैक्शनल है तो कौन सा यूज करेंगे, फ्लोट. नहीं बताए हैं विकास, ये तो बता चुके हैं आप मुझे.
डेटा टाइप तो बिना डेटा टाइप बताए हम लूप पे जा ही नहीं सकते। शायद नहीं, आप कन्फर्मली जो है आप ऑप्शन याद है, आप ऑप्शन क्या है बीच में 2-3 दिन, उसी दिन में ये हो गया होगा, है कि नहीं? ऑलरेडी डेटा टाइप ऐसे लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ, राइट डाउन लिखिए। ऑब्सेंट, यही मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज ऑल ऑफ यू, इफ यू आर ऑब्सेंट तो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और आप ऐसे ही होंगे कि क्या, ऐसे करने से नहीं होगा, आप अटेंड कीजिए रेगुलरली। हियर यू विल राइट डेटा टाइप और 2-3 चीज और लिख देते हैं। डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप आइडेंटिफायर, स्टोर, यानी कि डेटा टाइप आई विल टेक इंट, इंट का डेटा टाइप का आइडेंटिफायर क्या है, परसेंट, यस या नो, एंड स्टोर वेरिएबल, किस तरह से वैल्यू, किस तरह का वैल्यू होल्ड करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू, किस तरह का वैल्यू होल्ड करेगा, होल्ड वैल्यू, स्टोर नहीं, होल्ड वैल्यू लिखिए। वैल्यू कौन सा होल्ड करेगा, न्यूमेरिक, एंड देन इफ यू विल राइट क्लास परसेंटेज फ्रैक्शनल, विकास आप भी नोट डाउन कर लीजिए, बाद में स्लिपिंग कर लीजिएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू, इसमें किस तरह का वैल्यू होल्ड करेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू, एंड देन डबल परसेंट, इस तरह से आ रहे ना, ऑलमोस्ट ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हियर जब भी अगर डेटा उस तरह से आ जाए, कैंसिल पे क्लिक कर देना, हमारा अनलिमिटेड रहता है। मैसेज मोबाइल का एक सेटिंग होता है ना, कितना कंज्यूम करने में दिमाग, वही हो गया। तो बैक